children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, the Earth and its neighbors. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सन एंड सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ की मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड मून एंड स्टार्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। The sun, moon and stars are the neighbors of the earth in space. They are also called heavenly bodies or celestial bodies. People study about the heavenly bodies with the help of telescopes. सन, मून, स्टार्स ये अर्थ के नेबर्स हैं स्पेस में, ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज। और हेवनली बॉडीज को स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, इट इज अ स्टार। अर्थ इज अ प्लैनेट, इट मूव्स अराउंड द सन। A planet is a small object that moves around the sun in a fixed path called orbit. There are 8 planets in the sun's family. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The sun and its 8 planets together make the solar system. Sun आपको पता है बहुत बड़ी बॉल है फायर का, है ना। हमारी अर्थ एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाती है। तो प्लैनेट एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं फिक्स्ड पाथ में, जिसे कहते हैं ऑर्बिट। और आपको पता है कि हमारे पास ये 8 प्लैनेट्स हैं। तो सन और ये 8 प्लैनेट्स मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है इनको ऑर्डर में याद करने का। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। फर्स्ट आपको लेटर लेना है, एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स एंड सो ऑन। Planets have no lights of their own. They reflect the light of the sun that fall on them. Planets की खुद की light नहीं होती। The earth is the home of all living beings. The earth is made up of land and water. About 70% of the earth's surface is water and only 30% land. The earth has a layer of air around it called the atmosphere. Earth is the only planet which has air and water. So life is possible only on the earth. All other planets have no life. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. So it looks small to us. The sun's light takes 8.5 minutes to reach the earth. अर्थ सभी लिविंग बींग का घर है। अर्थ जो है लैंड एंड वाटर से बना है एंड आपको पता है कि 70% अर्थ के सरफेस पे वाटर है एंड 30% ही लैंड है, राइट। इसके अलावा अर्थ के पास एक लेयर ऑफ एयर है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एंड अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ एयर, इट हैज़ वाटर। सन जो है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और ये हमें छोटा सा नजर आता है। सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में टाइम लगता है 8.5 minutes. The shape of the earth. The earth is round in shape. We have many proofs which show that earth is round. When a ship sails away from the shore, it disappears gradually. First, its lower part, the hull disappears, and then its upper part, the mast. This can happen only when a surface is round. If the earth were flat, the whole ship would have gone out of sight at the same time. Many people have gone into space. They took many photographs of the earth from space. All these photographs also show that the earth is round. देखिए हमारी अर्थ जो है राउंड है शेप में और बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं, जैसे कि जो शिप है आपकी शोर से सेल करती है तो ये ग्रेजुअली डिसअपियर होता है, धीरे धीरे डिसअपियर होता है। सबसे पहले इसका लोअर पार्ट होता है, राइट, और उसके बाद इसका जो अपर पार्ट जिसे मास्ट बोलते हैं वो डिसअपियर होता है। तो ये तभी होता है कि जब सरफेस राउंड होता है। अगर सरफेस एकदम फ्लैट हो तो पूरी की जो शिप है वो एक टाइम पे ही आपके नज़रों से दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग स्पेस में गए हैं, उन्होंने अर्थ की फोटोग्राफ्स ली है, तो फोटोग्राफ्स ये शो करती है दैट अर्थ इज राउंड इन शेप। Do you know the earth is in fact not really round, it is slightly flattened on the top and bottom poles. Earth actually एकदम से round नहीं है, ये थोड़ी सी flattened है top में and bottom poles में. The movements of the earth makes 2 kinds of movements, rotation and revolution. Rotation. The earth moves on its axis like a top. The movement of the earth on its axis is called rotation. The earth rotates from west to east. It makes one rotation in about 24 hours. This makes a complete day. अर्थ आपके 2 मूवमेंट शो करती है, वन इज रोटेशन एंड वन इज रेवोल्यूशन। रोटेशन जब अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, जैसे एक लट्टू होता है ना टॉप, इस तरह से, तो उसे रोटेशन कहते हैं। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है एंड रोटेशन में टाइम लगता है 24 आवर्स का, जो कि एक कंप्लीट डे बनता है। Rotation causes day and night. The rotation of the earth on its axis causes day and night. As the earth rotates, half of it faces the sun, this half has day. The other half away from the sun has night. Since the earth goes on rotating all the time, day and night follow each other. The sunrise marks the start of day and the sunset the coming of night. अब rotation की वजह से आपके day and night होते हैं।
जब आपकी अर्थ रोटेट करती है तो इसका हाफ फेस सन की तरफ होता है जहाँ डे होता है, और हाफ फेस जो सन से दूर होता है वहाँ पे आपका नाइट होता है. Let's do it. Put a globe on a table, light a lamp and place it at the outer end of the globe. What do you observe? You will see that half of the globe facing the lamp is lighted. It has day. The other half away from the lamp is dark. It has night. Now rotate the globe slowly from left to right. You will see that the lighted part is turning into darkness and the dark part into light. The same thing happens to our earth. देखो आपको क्या करना है, एक टेबल पे आपने रखना है ग्लोब, ठीक है, और आप डार्क रूम में, उसके बाद आप टॉर्च जलाएंगे या फिर कोई लैम्प आप ले लीजिए, तो आपको इस तरह से नज़र आएगा ये जो रोशनी आपकी पड़ रही है हाफ पार्ट में ही पड़ेगी ग्लोब के, तो वहाँ पे डे होगा, और जहाँ पे रोशनी उसकी नहीं पड़ रही है वहाँ पे नाइट होगा. इसके बाद जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो जो नाइट वाला पार्ट है यानी डार्कनेस वाला पार्ट है वो लाइट की तरफ आ जाएगा, यानी उसमें डे हो जाएगा, एंड जो आपकी लाइटेड पार्ट था वो आपका चला जाएगा पीछे, यानी जहाँ पे नाइट थी. तो सेम चीज़ अर्थ के साथ भी होती है. Revolution. While rotating on its axis, the earth also goes around the sun. The movement of the earth around the sun is called revolution. The earth takes 365 1/4 days to complete one revolution. This period is called a year. The revolution of the earth around the sun causes seasons. You will learn about the formation of seasons in the next classes. अब अर्थ रोटेट तो करती है, साथ ही साथ वो रिवोल्यूशन भी करती है. किसके अराउंड? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, बिकॉज अर्थ इज अ प्लैनेट. अब इसको रेवोल्यूशन में टाइम लगता है 365 and 1/4 days, एंड इस पीरियड को हम बोलते हैं ईयर. और रेवोल्यूशन की वजह से आपके क्या होते हैं, सीजन्स बनते हैं. और बाकी आपको किस तरह से ये सीजन्स बनते हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा. The moon. The moon is our closest neighbor in space. It is about 3,84,000 kilometers away from the Earth. The moon is a satellite of the Earth. It revolves around the Earth once in 27.3 days. We always see the same side of the moon. The other side of the moon remains away from the Earth. The moon has no light of its own. It shines because it reflects the sun's light. The moon has no air or water, so there is no life on the moon. The moon seems to change its shape every night. When the moon is between the sun and the Earth, we did not see it at all. This is called the new moon. मून हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और इसका डिस्टेंस है इतना किलोमीटर हमारी अर्थ से दूर है. मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड इन 27.3 डेज. एंड एक्चुअली आपको पता है हमें मून की ना हमेशा सेम साइड ही नज़र आती है. जो अदर साइड होती है मून की वो हमेशा अर्थ से अवे होती है. मून की खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, राइट. मून में एयर और वाटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है. मून हमें ऐसा लगता है कि हर दिन अपनी शेप चेंज करता है. जब मून आपका सन और अर्थ के बीच में होता है तो हमें वो बिल्कुल नहीं नज़र आता, इसे हम कहते हैं न्यू मून. इन 2 or 3 days time the moon looks like a sickle. This is called the crescent moon. After 2 weeks we see the whole part of the moon. This is called the full moon. The changes in the shape of the moon are called phases of the moon. अब न्यू मून के बाद क्या होता है आपका एक क्रिसेंट मून आता है इस तरह की शेप में, बहुत पतली सी शेप में, लाइक अ सिकल, राइट. एंड उसके बाद कुछ वीक्स के बाद आपको पूरा होल पार्ट नज़र आता, दैट इज़ फुल मून. तो ये सन की जो शेप्स चेंज होती हैं उन्हें हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून. People in space. Many people have gone into space. A person who goes into space is called an astronaut. Astronauts need special vehicles called space rockets to cross the Earth's gravity to go into the space. Space rockets carry spacecraft into space. Moon landing. Neil Armstrong, an American astronaut, became the first person to land on the moon. He landed on the moon on 20th July 1969. Neil Armstrong said these words when he stepped on the moon. There is a small step for men but a giant leap for mankind. देखिए कुछ लोग आपके स्पेस में जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट, राइट. तो एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस में उनको एक स्पेशल व्हीकल की ज़रूरत होती है जिसे बोलते हैं स्पेस रॉकेट. एंड स्पेस रॉकेट क्या कैरी करते हैं, स्पेस क्राफ्ट को कैरी करते हैं स्पेस में. मून पे सबसे पहले गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जो सबसे पहले मून पे उन्होंने अपना पैर रखा था ऑन 20 जुलाई 1969. 2 other astronauts, Edwin Aldrin and Michael Collins, also went with Neil Armstrong. They went to the moon in a spacecraft called Apollo 11. Neil Armstrong के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट थे आपके, Michael Collins and Edwin Aldrin. Indians in space. Rakesh Sharma became the first Indian to go into space. He went into space in 1984. Kalpana Chawla was the first Indian woman to go into space in 1997. She died in 2003 when her space shuttle crashed on the return journey.
Sunita Williams became the second woman of the Indian origin to go into space in 2007. She stayed in space in her spacecraft for a record 195 days. अब इंडिया में से सबसे पहले राकेश शर्मा थे जो स्पेस में गए थे 1984. कल्पना चावला पहली इंडियन वुमन थी जो स्पेस पे गई थी 1997 में. बट अनफॉर्चुनेटली 2003 में इनकी डेथ हो गई जब ये वापस आ रही थी और इनका जो स्पेस शटल था वो क्रैश हो गया. सुनीता विलियम्स सेकेंड वुमेन है, वो इंडियन ओरिजिन की है, तो वो अमेरिकन बट इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस में गई थी 2007 में. और इनके नाम अपना एक रिकॉर्ड भी है, लगभग ये 195 डेज तक स्पेस में रही थी. The stars are big heavenly bodies. Some stars are bigger even than the sun. They look small to us because they are far away from us. The stars have their own light. They remain at one place. The sun is a yellow star. It is the nearest star to the earth. The pole star or Dhruv Tara is also a famous star. It is in the north direction in the sky. Some groups of stars form special patterns like animals or human beings in the sky. These groups of stars are called constellations. Some famous constellations are the Ursa Major, Great Bear, Scorpio और स्कॉर्पियन, ओरियन, हंटर एंड लियो, लायन. स्टार्स आपके बहुत बड़ी हेवनली बॉडीज़ हैं. आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो सन से भी बड़े होते हैं, बट वो हमें छोटे नज़र क्यों आते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत यानी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं. इनकी खुद की लाइट होती है और ये एक जगह पे ही रहते हैं. सन जैसे आपका एक येलो स्टार है, ठीक है, ये हमारा नियरेस्ट स्टार है अर्थ से. पोल स्टार या ध्रुव तारा ये भी आपका फेमस स्टार है जो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में मिलता है आपको. कुछ ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के जो एक स्पेशल पैटर्न बनाते हैं, एक रिकग्नाइजेबल शेप बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन. तो बहुत सारे ये कॉन्स्टलेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे स्काई में. Till today, 88 constellations are known to the scientists. On a clear night, try to identify the following constellations. अब तक की डेट में साइंटिस्ट ने 88 कॉन्स्टलेशंस के बारे में पता किया है. अब ये देखिए, ये शेप कभी क्लियर नाइट में आप देखिएगा, ये शेप्स आपको बनती हुई नजर आएंगी. Indian astronomers. People study about the stars are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer. He was the first to tell that the earth is round and it rotates on its axis. He described these facts about 1500 years ago. India launched its first satellite, Aryabhatta, in 1974 after the name of this great astronomer. Varamihir and Bhaskar were other famous Indian astronomers. They wrote many books on astronomy. Bhaskar developed a method to find out the motion of the earth. देखिए, जो लोग स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. आर्यभट्टा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के लगभग 15,000 साल पहले, और उन्होंने ये बात बोली थी कि अर्थ जो है वो राउंड है एंड अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. आर्यभट्टा जो है हमारा एक सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट जो बना वो इन्हीं के नाम पे पड़ा था. इसके अलावा वराहमिहिर और भास्कर ये भी फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे. इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर. हैव यू सीन द जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली और जयपुर? सवाई जय सिंह, द किंग ऑफ अम्बेर जयपुर, बिल्ट इट टू बिल्ड द पोजीशन ऑफ द स्टार्स. जंतर मंतर कभी आप देखना दिल्ली में या जयपुर में है. इसे बनाया था सवाई जय सिंह ने. ये अम्बेर जयपुर में है, उनके राजा थे. इन्होंने इसे बनाया था स्टार्स की पोजीशन को स्टडी करने के लिए. Let us remember, the sun and its planets make the solar system. There are 8 planets in the solar system. The earth makes 2 kinds of movement, rotation and revolution. The rotation of the earth causes day and night. The revolution of the earth causes seasons. The moon is a satellite of the earth. A group of stars is called a constellation. People who study about the stars are called astronomers. सन और इसके 8 प्लैनेट्स मिलकर बनाते हैं आपका सोलर सिस्टम, राइट. अर्थ जो है वो 2 तरह के मोमेंट शो करती है. वन इज रोटेशन एंड अदर इज रेवोल्यूशन. रोटेशन की वजह से आपके डे एंड नाइट होते हैं एंड रेवोल्यूशन से आपके सीजन्स बनते हैं. मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. एंड ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन. जो लोग स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.